Hello everyone. In this video, we are going to see what is generator matrix and how this matrix is used to generate a code word in the linear block code. So let's get started. First, you are supposed to understand what is generator matrix, what is block code, or what is code word. Basically, when I say a code word, so a code word is calculated by getting some of the identity matrix, which is known as, we can represent it as a message block, and we can say there is a generator matrix. So this is the formula for calculating code word. Now one by one we will see. G represent the generator matrix. Okay, it is generator matrix. Now as I told you, C represent the code word. Okay, and D represent the message block. So you are supposed to know the terms also, because in the examination, they can give you a question and they can ask you lots of questions related to generating code word. Now code word means it can be a 1 bit, 2 bit, or it can be a group of multiple bits. Let us take an example. One code word is C1, C2, C3 till C of n. Similarly, there can be lots of message blocks. So it is represented by D1, D2 till Dk. Similarly, there will be one generator matrix. Now, what is generator matrix is, first I will explain that. So G represent a matrix which is in the form of IK, and this is colon P. So what does it represent? So G represent a generator matrix, I represent your identity matrix, and P represent again one parity matrix. So this is your identity matrix. Identity matrix. P represent a parity matrix. Now, what is identity matrix? If I say ki identity matrix means 1, 0, 0, 1. So this is 2 cross 2 identity matrix. Similarly, if I will ask you 3 cross 3, so it is 1, 0, 0. Again, the position of 1 will be next. And again, one position will be shifted. This is the identity matrix of 3 cross 3. This is the identity matrix of 2 cross 2. तो basically ये सारे maths के topics हैं. I guess आपने अपने जूनियर कॉलेजेस में या फिर यूजीपीजी में पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेम थिंग व्हाट वी आर, because we have to solve a question. So if I say it is the matrix which is represented into the form of k cross n. Now what is the value of k? The value of k is rows and the value of n represent your column. So this is general representation. Now this is G. So let us take an example. Let us take Z. Z is 3 cross 3 identity matrix. So it is 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. आपको सिर्फ 1 का diagonal position पे रखना है. That is identity matrix. And with the identity matrix, we have parity bit. So what is parity bit is? So it can be 1, 1, 1, then 1, 2. I'm just writing the position for parity matrix. Then it can be n minus k. Similarly, the position will be p21, p22. So p2 n minus k. Then similarly p31, p32, and it will be p3 n minus k, or it can be k. So this is the representation of generator matrix. Now this identity matrix is 3 cross 3. We have taken the example of 3 cross 3, which is also known as k cross a, because I have taken k as an identity matrix. Now similarly, if I say this is the parity matrix, so parity matrix is k cross n minus k, total number of elements. So this is the representation of identity matrix and parity matrix. तो ये सिर्फ आपको मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज जनरेटर मैट्रिक्स. अभी इसको समझ के आप एक क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व कर सकते. तो क्लियरली, so it was code word. Now coming to this thing, so this was the basic of generative matrix, which is nothing but identity matrix and then parity matrix. Then इसको ही use करके you will calculate the code word. So what is code word then? It is a message block multiplied by generator matrix. So generator matrix अभी हमने क्या लिखा? So we have written this thing. That is, I have taken 3 bit. So it is 3 bit generator matrix 0, 0, 1. And then we will take the value of P11, P12, and so on. Similarly, P21, P22, so on. P31, P32, and so on. So this is the matrix representation for generator matrix and how we are going to calculate the code word. Now this was just a theoretical. Examination में आपको theory तो नहीं पूछेगा. They will ask you how to solve the numerical. So let's get started with one of the numerical.
So let us take an example. In your question, in your examination, they will give you a matrix like this. So let us take an example, the generator matrix of 6 cross 3 block code is given below. Like G equals to, it is written 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and 0 1 1 1 0 1 and it is 1 1 0. Okay, this is given. Examination में आपको ये given होगा. And then what is the question? Obtain all code vectors of this code. ये जो जनरेटर मैट्रिक्स गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आपको सारे कोड वेक्टर्स कैलकुलेट करना है. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो लेट अस सी. नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ चीजें समझ लीजिए. इट हैज गिवन अ वैल्यू दैट इट इज 6 क्रॉस 3. नाउ हियर the value of nk is 6 cross 3. Now what is n? Just now we have seen n represent करेगा आपके number of column को and this will represent number of rows. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ लेगा लेंथ ऑफ कोड वर्ड. आपके कोड वर्ड का लेंथ क्या होगा. सो लेंथ ऑफ कोड वर्ड इज इक्वल्स टू n, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल्स टू 6. Similarly, another question will be number of message bits. Number of message bits, which is represented by k, which is also known as your number of rows, which is 3. तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में अगर आप महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ मैसेज बिट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज. यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड इट इज टोटल नंबर ऑफ रोज. सो दैट इज 6,3. Now, what we have learned, G equals to identity matrix colon P. Now, K represent K of cross K is identity matrix and it is your K into N minus K. Now, what is the value of K? The value of K is your 3. So, it is 3 cross 3. Again, it is 3 cross 6 minus 3. So, 6 minus 3, it will be 3. तो ये हमने in terms में सीख लिया. इसका क्या मतलब है? आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इट इज नथिंग बट 3 क्रॉस 3 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ what is the value of P? The value of P is given in the question. So basically this is your identity matrix given in the question and this is your parity matrix. Parity matrix. तो मैं यहाँ पे सेम उसी चीज को लिख रही हूँ, K cross N minus K which is nothing but 0 1 1 1 0 1 1 1 0. सेम चीजें मैंने लिख दिया. तो इस क्वेश्चन में अभी तक आपने क्या समझा कि एग्जामिनेशन में जब आप ध्यान से देखेंगे जो स्टार्टिंग के बिट्स होंगे, स्टार्टिंग के बिट्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से वैल्यूज 1 होंगे और इसके बाद ये इस तरीके से एग्जामिनेशन में एक सेपरेटर नहीं होगा. ये आपको समझाने के लिए मैंने सेपरेटर यहाँ पे लिखा है और ये आपका पैरिटी मैट्रिक्स है. इस तरीके से आपने लिख लिया. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, आपको पूछ लेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कोड वर्ड. ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कोड वर्ड. ओके, कैसे निकालेंगे. सो इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन नंबर ऑफ मैसेज बिट्स. नंबर ऑफ मैसेज बिट्स क्या था, दैट इज k इक्वल्स टू 3. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे आप बनाते हैं, 2 to the power 3 दैट इज 8. ठीक है, आपका जो भी जितने नंबर ऑफ बिट्स गिवन होते हैं उसके कॉम्बिनेशन आप उसको पावर में ले लेते हो, दैट इज 8. सो आपके कोड वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कोड वर्ड्स आपके हो जाएंगे 8 विच इज नथिंग बट इट इज d विच इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 1 0 1 0. अब मैं ये क्या लिख रही हूँ, अगर आप CS के स्टूडेंट है तो आपको ये समझ में आना चाहिए. दिस इज नथिंग बट C0 C1 C2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. ये आपका निकल कर आ गया कोड वर्ड. दैट इज इट इज नथिंग बट कोड वर्ड में आपको 2 चीजें निकालनी थी. एक निकालना था आपको मैसेज बिट. सो दिस इज योर मैसेज बिट्स. ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न इन द फर्स्ट स्लाइड, C इक्वल्स टू D एंड G. तो ये आपका मैसेज बिट निकल गया. तो याद रखना है कोई भी क्वेश्चन हो, मैसेज बिट अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो मैसेज बिट हमेशा ये सेम ही आने वाला है.
इसमें कुछ भी चेंज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कोड वर्ड ये आपका मैसेज बिट निकला। कोड वर्ड के लिए हमने डी कैलकुलेट कर दिया, जी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब जी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप समझिए। आपको जो ये फर्स्ट नंबर है, दिस इज योर फर्स्ट बिट, दैट इज 000, ठीक है, ये 000 गिवन है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, द वैल्यू ऑफ जी। सो ये एक कोड वर्ड लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड लिया, सेकंड को मल्टीप्लाई किया, तो टोटल नंबर ऑफ आपके 8 कोड वर्ड्स निकलेंगे। और पैरिटी मैट्रिक्स हमारा क्या गिवन था, 100 010 001 एंड देन यू हैव 011 101 110। ये ठीक वही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे गिवन है, दिस इज जी। तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड डी। डी कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आपको 3x3 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है वो आपका नंबर ऑफ बिट्स है, उसको पावर में ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ बिट्स को, देन यू विल गेट द मैसेज बिट। अब आपको सिंपल यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। आई होप यू नो हाउ टू डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। कैसे करते हैं, मैं एक एलिमेंट का आपको बताती हूँ, इस एलिमेंट का इसके साथ, इस एलिमेंट का इसके साथ और इस एलिमेंट का इसके साथ आप प्लस करते हैं और उसको ऐड करते हैं। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस यू विल डू एक्सॉर। इंस्टेड ऑफ प्लस आपको क्या करना है, एक्सॉर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सॉर लिख दूँ। अगर 0 0 है, अगर आपके पास 0 1 है, 1 0 है और 1 1, सो दिस आर द 2 बिट्स। ओके, अगर आप यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन लगाएंगे, एक्सॉर ऑपरेशन अगर आप इसके बीच में लगाएंगे, तो एक्सॉर ऑपरेशन में क्या सीखा है, अगर इनपुट आपका सेम होता है देन एलिमेंट विल बी 0 एंड दिस इज 1। अब ये रूल आप यहाँ पे लगाइए। कैसे लगाएंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सबसे पहली वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सॉर लेंगे, फिर अगेन 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर अगेन एक्सॉर आप लेंगे, फिर अगेन 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो ये आपका पहला बिट का पोजीशन हमने निकाला। ठीक है, जब आप इस बिट को पोजीशन लगाएंगे तो दिस इज 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0, 0 0 का एक्सॉर क्या हो जाएगा 0, अगेन एक्सॉर 0, इट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब मेरा पहला जो कोड वर्ड आया, मेरा जो पहला कोड वर्ड आया, आई एम राइटिंग हियर माय फर्स्ट कोड वर्ड इज 0, ठीक है 0। अब यहाँ पे ये 0 मैंने एक बिट के करस्पॉन्डिंग निकाला, सिमिलरली दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, आपको सबके लिए निकालना है। तो इतना तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि अगर पहला बिट 0 है, आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, यू विल ऑलवेज गॉट 0। तो इस 3 बिट के लिए आपको 0 ही आने वाला है, और इसी 0 को जब आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे पैरिटी बिट से, अगेन यू विल गेट 0। सो दिस इज माई फर्स्ट कोड वर्ड, दिस इज माई फर्स्ट कोड वर्ड। अब मैं इसी तरीके से आपको सेकंड कोड वर्ड सिखाती हूँ, हाउ यू आर गोइंग टू डू सेकंड कोड वर्ड, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड C2 की अगर हम बात करें तो मैसेज बिट क्या है, 1 0 0 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आप सेम लिखेंगे, दैट इज 1 0 0 0 1 0 and this is 0 0 1, then you have 0 1 1, it is given in the question 1 0 1 and then 1 1 0। अब मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को पॉज करके और खुद से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। जब मैं ये पहले बिट 0 को लूंगी तो इस 0 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 0 का मल्टीप्लाई 1, हम लोग ऐसे सीखते हैं प्लस, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 0। अब इसी प्लस को मैं एक्सॉर लिख दूंगी बिकॉज यहाँ पे आप एक्सॉर यूज करते हैं। तो ये मेरा पहला बिट निकल कर आया, मैं कॉलम से लिख ले रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ। फिर इस वैल्यू को, मतलब अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने इस वैल्यू को इस इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, तो दैट इज जो सिक्स्थ बिट निकल कर आएगा। तो अब यहाँ पे करते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड वैल्यू अगेन मेरा यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू 0, सेकेंड कॉलम को देखिए और इस रो की वैल्यू लिखिए, फिर मेरा है 0 इंटू 1 प्लस एंड देन अगेन 1 इंटू 0, ठीक है। तो ये मैं एक्सॉर लिख लेती हूँ, ये मेरा सेकंड बिट हो जाएगा। थर्ड बिट थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये मेरा थर्ड हो गया। प्लस को आप यहाँ पे एक्सॉर लिखेंगे। फिर चौथा उठा लीजिए, 0 इंटू 0
प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ये एक्सॉर हो गया, ये चौथा हो गया। देन अगेन वी हैव 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ये एक्सॉर ले लेंगे। दिस इज फिफ्थ एलिमेंट फॉर कोड 2 एंड अगेन इट इज 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ये आपका एक्सॉर हो गया। तो आप प्लस ले लीजिए, फिर उसको एक्सॉर बनाइए। अब हमें इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। ये आपका 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0। ठीक है। जब आपका सेम इनपुट है 0 0 या 1 1, देन एक्सॉर विल बी 0। 0 1 है या 1 0 है, देन एक्सॉर विल बी 1। तो ये तीनों को अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो यू विल गेट 0। सिमिलरली 0 का एक्सॉर 0 इंटू 1 0 एक्सॉर 0, अगेन इट इज 0। इसको करिए 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1। ठीक है, 0 0 का एक्सॉर हुआ 0, 0 और 1 का एक्सॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। देन इट इज 0 0 प्लस 1 एंड अगेन इट इज 0 एक्सॉर 1, दैट इज 1। ठीक है, ये 1 आ गया। देन इसको सॉल्व करिए 0 एक्सॉर 0। अब अगर आपको ये तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सॉर ले रहे हैं, तो ये 0 एक्सॉर 1, अगेन इट इज 1। देन वी हैव 0 एक्सॉर 0 एक्सॉर 0। सो तीनों 0 आ गया, तो इट विल बी 0। ठीक है। अब कितने कोड वर्ड आए, आपको क्या क्या उठा लेना है? दिस इज माई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। So that is, it is equals to 0 0 1 and 1 1 0। ये मेरा आ गया कोड वर्ड सेकेंड, पहला निकाला। ये मेरा कोड वर्ड 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रही हूँ आपको। पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कोड वर्ड, दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। तो जो भी आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में गिवन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, तो आप नंबर ऑफ रोज देखेंगे तो वो आपका मैसेज बिट होता है, उसको पावर में ले लेंगे। सो दैट इज द कोड वर्ड। तो 8 यहाँ पे कोड वर्ड, मतलब कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। उसके बाद कोड वर्ड निकालने के लिए उसी मैसेज बिट के साथ आप जो भी जनरेटर मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बट प्लस की जगह आपको एक्सॉर करना है। तो आप ये याद रखेंगे, ये आपका कोड निकला। तो पहला कोड क्या निकला अभी? 6 टाइम्स 0। अब मैं आपको यहाँ पे कोडवर्ड लिखती हूँ, ठीक है। तो कोडवर्ड कैसे लिखेंगे, देखो कोडवर्ड हमने क्या सीखा है? कोडवर्ड इक्वल्स टू मैसेज बिट्स फॉलोड बाय योर पैरिटी बिट। ठीक है। तो आपको C1 C2 इस तरीके से यहाँ पे गिवन था। पहला था 0 0, ये फिर है 1, ये है 2, ये है 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 एंड दिस इज 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी जैसे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे पैरिटी बिट 3 आया। इसको जब हमने अभी सेकंड वाले को सॉल्व किया, दिस इज 1 1 0। ठीक है, दिस इज 1 1 0, लास्ट का 3 बिट, लास्ट का 3 बिट 1 1 0। सिमिलरली जो भी लर्नर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सॉल्व करिए नेक्स्ट वाला। जैसे 0 1 0 2 जब लेंगे तो इट विल बी 1 0 1, देन इट विल बी 0 1 1, अगेन 1 0 1, 0 1 0 के लिए 1 0 1 0 1 1, इसके लिए भी 0 1 1 है। देन 1 0 1 के लिए 1 0 1, इट इज 1 1 0 एंड देन इट इज 0 0। ठीक है। तो आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो भी लर्नर्स इस वीडियो को समझे हैं उनको ये कोड वर्ड निकालना है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। सो दिस इज योर कोड वर्ड, दिस इज योर C1 C2 C3, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, C5 C6 C7 एंड C8। ये आपका कोड वर्ड निकल कर आ गया। दो हमने सॉल्व किया, बाकी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि आपको यहाँ पे एक्सॉर निकालना है। एक्सॉर मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब कुछ ऐसे लर्नर्स होंगे जो बोलेंगे एग्जाम में इतना टाइम लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में आपको सारे बिट्स निकालने नहीं देंगे, आपको क्वेश्चंस में अभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको एलिमिनेट करना होगा ऑप्शन। बट मजेदार बात ये है ना, एग्जामिनेशन में ट्रिक क्या लगता है कि जो आपको मैसेज बिट गिवन है, ठीक है,
आपको सबसे पहले तो एग्जाम में आप उसका लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ क्या रहेगा, जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप देखो कितने बिट है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो जो भी इसका लेंथ है, ठीक है, जो भी उसका लेंथ है उतना ही का आपका कोड वर्ड भी बनेगा। लेंथ वहां पे 6 था, दैट इज नथिंग बट कॉलम, तो कोड वर्ड भी आपको 6 बिट का बनेगा, पहले तो वो याद रखना है। फिर आपका एक मैसेज बिट गिवन होगा, दैट इज नंबर ऑफ रोज। जो भी नंबर ऑफ रोज गिवन होगा उसको पावर में आप ले लेंगे, तो दैट विल बी बिकम योर मैसेज बिट। तो ये 3 आपका मैसेज बिट है, ये 3 मैसेज बिट है यहाँ पे, और ये 3 आपका पैरिटी बिट है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ज्यादातर क्वेश्चन देखा जा रहा है जिसमें 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर गिवन है, ठीक है, मतलब 3x3 का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 to the power 8। तो एवरी टाइम आपको पता है दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 0, दिस इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है, ये आपको एग्जाम में निकालने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है। ये तो आप ऑप्शन देखते ही इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाला आपका मैसेज बिट होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका पैरिटी बिट होता है, और दोनों को मिला के ये आपका कोड वर्ड होता है। ठीक है, तो ये 7 आपको स्टार्टिंग के 3 बिट याद करने का जरूरत नहीं है, और फिर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे। इवन जो ये स्टेप मैंने बताया, इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कैलकुलेट और इसको कैलकुलेट करने की एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका यहाँ पे मैसेज बिट गिवन है, जब आप इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू 0 0 1। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी मैसेज बिट को उठाकर उसके लिए कोड जनरेट कर रहे हैं। जब आप कोड जनरेट करेंगे इस मैसेज बिट का, जो फर्स्ट का 3 बिट होगा वो सेम ही आने वाला है। तो एग्जामिनेशन में ये 6 नहीं निकालना है आपको, लास्ट के सिर्फ इस 3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आई होप इट इज क्लियर इन दिस वीडियो। तो कोशिश करिएगा निकालने का। अगर कुछ डाउट होता है तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। I hope this video is useful to you, so please share this video with your friends also. And if you are new to our channel, do subscribe our channel for all the upcoming videos. Thank you so much for watching this.